Good morning, 11th class. So, we are on our chapter number 6, geomorphic processes. We have already gone through the basic meaning of what is geomorphism, what is what are geomorphic processes, and then we have also done the endogenic forces. That how does these processes bring change in the surface of the earth, और बेसिकली ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने डायस्ट्रॉफिज्म के बारे में पढ़ लिया है डिटेल में, वोल्केनिज्म के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड वी वेंट थ्रू इट ब्रीफली इन आवर प्रीवियस क्लास. So now we move on to the next topic, which is exogenic forces. Now exogenic forces, we already know that these are the forces which act on the surface of the earth. Okay, now we have a brief idea of what actually is exogenic process or what are the exogenic processes, but what do we need to understand here is from where does these processes derive their energy, and basically they derive their energy from atmosphere, which is actually determined by the ultimate energy of the sun. Now we will also understand that how does the sun plays an important part in actually इनिशिएटिंग या हम बोलेंगे उसको स्पीड अप करने के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो एक्सोजेनिक फोर्सेस को बेसिकली एनर्जी मिलती है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर को समवेयर हम बोलेंगे एनर्जी या जो भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं इट अकर्स बिकॉज ऑफ द सन एंड ऑल्सो because of the gradients, the slope that is created by the tectonic factors. Now gravitational force actually acts upon the earth's material एंड स्पेसिफिकली जब स्लोपिंग सरफेस होता है तो क्या होता है, चीजें जो है वो मूवमेंट करती हैं, और मूवमेंट किस साइड पे करती हैं, वो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन की स्लोप होती है वहीं पे मूवमेंट करती है. So here we need to understand that there are many factors which are responsible for the exogenic processes, and here after this we study how are these forces responsible for the movements and creating these exogenic processes. So just keep in mind two important things, sun and the gravitational force, and then we'll go on slowly and understanding the other aspects of it. सबसे पहले before moving on, if I ask you people that what do you understand by what do you understand by force? What according to you is force? Force is actually something, you can say some kind of pressure that is applied on something. Now this force applied per unit area is called as stress. ठीक है, I'm again repeating, force applied per unit area is called stress. Now stress generally क्यों जरूरी है, because stress is produced in solid by pushing or pulling, और इसी से क्या है, सॉलिड्स में क्या आ जाएगा, डिफॉर्मेशन, यानी कि उनकी जो फॉर्म है उसमें चेंजेस आ जाएंगे. सो यानी स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फॉर्मेशन, यू कैन से द शेप, द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड मटेरियल. एंड स्ट्रेस जो है सॉलिड के अंदर कैसे क्रिएट होता है, बाय पुशिंग एंड पुलिंग. एंड बेसिकली जो फोर्सेस अर्थ, हम बोलेंगे जो the forces which are acting on the earth's material are actually called shear stresses. shear stresses का मतलब क्या, separating forces, जो somehow force इस तरीके से अप्लाई करते हैं ताकि जो सॉलिड है ना उनका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट किसी भी शेप या किसी भी डायरेक्शन में हो, बट फोर्स जो है वो समवेयर इट एक्चुअली लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट और द स्लिपेज ऑफ द सॉलिड, और यू कैन से सॉलिड मटेरियल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है. तो अब हम ये जो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस तो है ही अर्थ मटेरियल पे. Again, as I said, you know that gravitation is a force which is always existing and always it is, you can say, occurring and acting on the solids, on everything. ठीक है, जो अपना gravitational force है. अब जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस है वो अर्थ मटेरियल पे कंटिन्यूअस चल रहा है, चाहे हम उसको अगर स्लोप के रिस्पेक्ट में समझना चाहें, कोई भी चीज है, एज आई सेड, इफ again as I'm repeating just for understanding, let us take a simple example that if we have something being placed on the mountain,
the peak of the mountain, okay, and you know it is slopey, it is inclined. So obviously if suppose there is a big rock, it will roll down. So why is it happening? Because of the gravitational force. Gravitational force अगर नहीं होता तो obviously वो जो rock है it may not have moved to the lower areas. Everything, even if we are talking, we are able to stand properly on the surface of the earth because of the gravitational force. So ये जो gravitation का force है ये एक तरीके से stress करता है continuous on the earth material, ठीक है। इसके अलावा एक हम ये भी देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रेस है वो भी होता है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रेस क्या होता है? यू ऑल मे बी नोइंग दैट ऑल द मैटर वी हैव स्टडीड इन आवर यंगर क्लासेस की जो भी मैटर है वो किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉलिड में बहुत उनके बीच में स्पेस नहीं होता, टाइटली पैक्ड होते हैं। whereas लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, गैसेस में वेरी दे आर वाइड स्प्रेड, और अकॉर्डिंगली हमने उनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। तो यहाँ पे वी कम बैक टू आवर टॉपिक इज दैट मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी होता है बेसिकली ऑन द सॉलिड। जो हम जब अर्थ फॉर्मेशन की बात करें या अर्थ की सरफेस पे जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये भी है, क्या चीज? मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रेस अपने को पता है बेसिकली टेम्परेचर चेंजेस में डिपेंड करता है। अगेन if you want to again understand in very simple terms, हमने पढ़ा है कि इन यंगर क्लासेस की सॉलिड को अगर हम हीट अप करते हैं, बेसिकली जो अगर हम आइस का एग्जांपल लें जनरल टर्म्स में, तो वो हीट अप करने से वो क्या हो जाता है? इट फॉर्म्स इनटू लिक्विड एंड देन इट फॉर्म्स इनटू गैस। और उसी तरीके से वाटर को अगर हम फ्रीजर में रख दें तो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो दैट मीन्स टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं उसके कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मूवमेंट में उनमें चेंजेस होते हैं, और उनमें जब चेंजेस होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? स्ट्रेस पड़ेगा। स्ट्रेस किस चीज पे पड़ेगा? ऑन दैट मटेरियल। और इसी के कारण हम बोलेंगे बेसिक चेंजेस क्या होता है? या तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है या फिर मेल्टिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये सबसे कॉमन चीजें हैं जो हमें पता है कि जो चेंजेस आते हैं इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर of the materials because of the you can say stress or changes in the temperature के कारण ये बेसिक हम बोलेंगे उनके फॉर्मेशन में चेंज होता है। तो बेसिकली ये वाली चीजें भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ये भी एक तरीके का स्ट्रेस है जो कंटिन्यूस होता है ऑन द मटीरियल्स, ऑन द रॉक्स, एंड बिकॉज ऑफ विच हम देखेंगे कि देर आर सर्टन दीज विल एक्चुअली जनरेट द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। इसके अलावा केमिकल प्रोसेसेस अपने को पता है। केमिकल प्रोसेसेस में जनरली क्या होता है? जो बॉन्ड्स होते हैं जैसे ग्रेन्स या फिर कुछ सपोज ऐसी चीज है जो सॉल्युबल है वाटर में, तो मिनरल्स का उसमें सॉल्युबल होना, या सीमेंटिंग ऑफ सर्टेन मटेरियल्स, यानी कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेसेस के कारण भी चीजों में चेंज होता है। तो बेसिकली हम बोलेंगे कि इन सब रीजंस के कारण क्या होता है? वेदरिंग होता है। इन्हीं सब रीजंस के कारण मास मूवमेंट्स होता है। इन्हीं सब रीजंस के कारण इरोजन्स भी होते हैं। तो ये बेसिकली हम बोलेंगे जो स्ट्रेस क्रिएट होता है ऑन द अर्थ्स मटेरियल, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द रॉक्स, ऑन बेसिकली द अर्थ मटेरियल्स, इसके कारण ही चीजों का इरोजन, वेदरिंग और बाकी एक्टिविटीज होती है, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। और फिर ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस है ये बाद में जाके अपना जो लैंड है उसके फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं? चेंज करते हैं। तो इसमें अगेन दो और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें समझनी चाहिए वो है कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन जेनरेटिंग दीज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। वी ऑलरेडी नो कि टेम्परेचर जो चेंज होगा तो ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर होगा ऑफ एनी मटेरियल ऑन द अर्थ इट इज अफेक्टेड, वेदर इट इज अफेक्टेड इन अ बिगर वे और अ स्मॉलर वे, दैट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक। बट असली में हम ये जो टेम्परेचर में चेंजेस आएगा उससे 100% there will be one or the other kind of effect on the surface of the earth, और obviously फिर आगे जाके उसमें changes आएंगे, चाहे वो stress के कारण हो चाहे वो और किसी changes के कारण हो। Then as I again said कि precipitation जो है वो भी बहुत important role play करता है, because we know, देखो, if we are just mentioning things in the book it means that
few things are there which we have already studied in detail, so we know it. Simple सी बात है. If I am saying precipitation, suppose coming down of water in the form of rain, तो जब रेनफॉल होगी वो अपने साथ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल को लेके जाएगी, तो वो हो गया सॉइल इरोजन. सो दैट मीन्स ये वाली चीजें जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर को तो हम समवेयर हर चीज से इक्वेट कर सकते हैं, चाहे हम इवेपोरेशन करें फिर कंडेंसेशन करें, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये समवेयर आपस में रिलेटेड है, और ये जो चेंजेस है ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द exogenic processes. So that is why we say that when we are talking in detail about the exogenic processes, which we will study in the later part of the chapter कि weathering क्या है, erosion कैसे हो सकता है, और different types of each of these categories, then before moving on to that we need to understand कि इसकी reasons क्या है. तो ये जो basic stresses होते हैं, ये जो basically climatic, temperature changes, precipitation, gravitational force, या हम बोलेंगे ये जो स्लोप या ग्रेडियंट्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. अब जो सारे के सारे ये जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं, इनको हम जनरल टर्म्स में क्या बोल देंगे? डेन्यूडेशन. यानी all the exogenic processes and basically exogenic geomorphic processes जो हैं उनको हम बोल देते हैं denudation. वाई? एक सिंपल मतलब है, ये जो वर्ड डेन्यूड है इसका मतलब होता है टू अनकवर. तो बेसिकली लैंड एरिया के काफी हिस्से को हटाना, बिकॉज थ्रू सर्टन प्रोसेसेस, चाहे वो थ्रू प्रेसिपिटेशन हो, चाहे रनिंग वाटर हो, चाहे विंड हो, चाहे ग्रेडियंट के कारण हो, बट जब हम अनकवर करते हैं एक लेयर जिसको हम वेदरिंग से रिलेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेन्यूडेशन. तो वेदरिंग अगेन चाहे मास मूवमेंट्स हो, इरोजन हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन डेन्यूडेशन. Now, so here we need to again understand that there are few terms, but the general meaning of the term is almost same. Now they have given us a flow chart in our book. If you have the book, you can open your page number 47. Otherwise, it is clearly visible on your screen, I suppose. So if you again see, this is again they are trying to explain us that what are the denudational forces. Obviously, जो processes है वो weathering है, mass movements है, erosion या transportation है. अब इनके पीछे driving force क्या है, energy क्या है? तो as we have just studied in the previous topic कि ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस या केमिकल एक्शन, हमने पढ़ा ग्रेविटेशन के कारण चीजें मूव करती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस के कारण उनके इंटरनल उसमें भी चेंज होता है स्ट्रक्चर में, और केमिकल एक्शंस के कारण भी वेदरिंग होती है. मास मूवमेंट्स का मेन रीजन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन है उसके पीछे आ जाएगा अपना काइनेटिक एनर्जी. दैट इज बेसिकली यू नो द मूवमेंट एनर्जी जो मोशन में आना है. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर साइंस क्लासेस. तो ये जो पिक्चर है या ये जो हमारी फ्लो चार्ट है, दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स अस थिंग्स दैट वी हैव जस्ट done in the previous slides. So after this, now we move on to the next topic. Now we know that these exogenic forces are somehow bringing lot of changes on the structure of the earth. Up when I started to talk about changes, I have mentioned few kind of reasons behind it, जिसमें हमने ये भी पढ़ लिया है कि ये gravitational force है, molecular stress है, this and that. जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं या बेसिकली टेम्परेचर की बात करते हैं, तो वी नो दैट देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स. बिकॉज अपने को पता है, चाहे हम लैटिट्यूड्स की बात करें, इफ यू रिमेम्बर द लैटिट्यूड टॉपिक, तो जो अर्थ है, द मेन लैटिट्यूड विच पासेस ऑलमोस्ट टू सेंटर ऑफ इंडिया, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इज इक्वेटर. ठीक है. उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट आ जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल. देन इफ यू रिमेम्बर इन यंगर क्लासेस हमने एक बेसिक डिवीजन बनाई थी कि बेसिकली इतने एरिया में टॉरिड जोन होता है इक्वेटर के पास वाले में और दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, उसके ऊपर अपना टेम्परेट जोन हो जाता है, देन फ्रिजिड जोन हो जाता है. यानी इन
determining the temperature of a area, many things are important. Latitude का तो I have just given you one example. Latitude के अलावा season wise भी temperature में difference आता है, climate में difference आता है, land के हिसाब से आता है, water के, if you remember हम बोलते थे closeness to the sea से भी effect पड़ता है temperature पे, कितना far off area है, interior of the land पे है या ocean या sea के पास है तो maritime climate होता है, या फिर interior of the earth में है तो extreme type of climate होता है. So that clearly means that a lot of things are influenced because of the temperature. अब इसके साथ साथ हम ये भी नोटिस करेंगे कि इनके कारण जो नेचुरल वेजिटेशन है उस एरिया की वो भी डिफर करती है. वी नो कि जो अपने एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो कौन से एरिया में होते हैं, डेसिडुअस कौन से एरिया में होते हैं, और जो अपने ये माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं ये कौन से एरिया में होते हैं. तो यानी टेम्परेचर इनको डिटरमाइन करता है, और टेम्परेचर के साथ साथ प्रेसिपिटेशन भी. एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें पता है टेम्परेचर्स भी हाई होते हैं और प्रेसिपिटेशन भी हाई होता है. तो यानी किसी एरिया का नेचुरल वेजिटेशन जो है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता है किस चीज से, बेसिकली वहां के टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन से. और टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत रीजन से आ जाता है, चाहे लैटिट्यूडनल हो, सीजनल हो, लैंड या वाटर की हम बोलेंगे क्लोजनेस हो. तो हम यही देखेंगे कि लॉट ऑफ चेंजेस आर ब्रॉट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ मेनी मेनी फैक्टर्स, जिसमें हमें पता है ऑल्टीट्यूड, एंगल ऑफ स्लोप देखेंगे हम, ओशन करेंट्स देखेंगे, ओशन करेंट्स के साथ साथ हम देखेंगे इंसोलेशन, विंड वेलोसिटी, कितनी हीट आती है किस एरिया में, डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, अमाउंट एंड काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, रोटेशन हमें पता है, रोटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके अलावा हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन, टेम्परेचर का डेली रेंज जो हम करते हैं ना कि हाईएस्ट और लोएस्ट क्या है एक पर्टिकुलर एरिया में, रेंज कितनी है, फ्रीजिंग, डेप्थ ऑफ फ्रॉस्ट प्रेसिपिटेशन, यानी ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये क्लाइमेटिक वेरिएशन को इफेक्ट करती है. और जब ये इफेक्ट करती हैं क्लाइमेटिक वेरिएशंस को, तो हम ये देखेंगे कि ऑब्वियसली एक्सोजेनिक फोर्सेस को इनिशिएट करने के लिए या उनको समवेयर इस प्रोसेस में हेल्प करने के लिए वी विल नोटिस that these forces are also really important, these factors are also really very important, and that is why we need to look into each and every part of these processes and we need to understand them again in detail. तो इसीलिए एज आई सेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये भी पता चलेगा कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो किस इंटेंसिटी से हो रहा है. इसके अलावा इस एक और चीज है टाइप ऑफ रॉक्स. What do I, why am I saying type of rocks? You may be knowing few rocks है जो certain चीजों के resistance होते हैं, कुछ है जो नहीं होते हैं, कुछ रॉक्स होते हैं जो बहुत सॉलिड होते हैं, कुछ इतने ज्यादा सॉलिड नहीं होते. और रॉक समवेयर होंगे रिस्पॉन्सिबल, क्यों? क्योंकि यही रॉक्स तो है जो वेदर होके छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में सेडिमेंट्स के फॉर्म में चेंज होते हैं. और जब ये सेडिमेंट्स के फॉर्म में चेंज होते हैं तभी तो ये आगे जाके या तो इरोड होते हैं या इनका हम बोलेंगे मूवमेंट होता है और फाइनली जाके कहीं इनका डेपोजिशन होता है और फिर लैंड के उसमें चेंज हो जाता है फॉर्मेशन में. तो बेसिकली यहाँ पे अगेन क्लाइमेट तो है ही जरूरी, और जो बाकी अपने पहले फैक्टर्स पढ़े हैं ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट, बट रॉक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली उसका स्ट्रक्चर जो है कैसा है, फोल्ड्स हैं, फॉल्ट्स हैं, उसमें ओरिएंटेशन कैसा है, और पेरेंट रॉक किस टाइप का था, क्या केमिकल थे, मतलब किस टाइप से कौन से केमिकल से वो इजीली सॉल्युबल है या नहीं है, रॉक्स कितने किस अमाउंट में ब्रेक होते हैं. जैसे कोई कोई तो है कि विंड एनर्जी से ही हो जाएंगे, कुछ है जो वाटर से रिलेटेड होते हैं, कुछ और किसी सन और सपोज प्रेसिपिटेशन के कंटिन्यूअस वेदरिंग के कारण टूट रहे हैं. इसके अलावा बेड जो है उसका इंक्लिनेशन क्या है, यानी कि जहाँ पे रॉक है उसका जो बेसिकली पेरेंट बेड है जहाँ पे वो फाइन अपने को मिलता है वो कैसा है, उसका ओरिएंटेशन, इंक्लिनेशन कैसा है, जॉइंट्स है या नहीं है उन रॉक्स में, हार्डनेस और सॉफ्टनेस कितनी है उन रॉक्स की, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है. हमने पहले भी पढ़ा था इन द प्रीवियस चैप्टर की मिनरल्स बेसिकली रॉक्स के अंदर होते हैं, तो मिनरल की क्वालिटीज के हिसाब से हम देखते हैं कि रॉक्स जो हैं वो किस
कैसे सॉल्युबल होंगे या केमिकली कैसे रिएक्ट करेंगे, वेदरिंग कैसी होगी, इसके अलावा वो परमिएबल है या नहीं है, मतलब उनके थ्रू वाटर सीप इन कर सकता है या नहीं कर सकता। एंड ऑल दीज थिंग्स अगेन एज आई सेड, रॉक्स आर अगेन इम्पोर्टेंट, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्हीं की ही वेदरिंग होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं, उनके डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि जो अपने ये नेचुरल फीचर्स होंगे या जो नेचुरल प्रोसेसेस होंगे, उस पे हर रॉक जो है अलग टाइप से रिएक्ट करेगा। क्यों अलग टाइप से रिएक्ट करेगा? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस पावर अलग है। वाटर के लिए अलग रेजिस्टेंस है, एयर के लिए अलग रेजिस्टेंस है, किसी का टेम्परेचर के लिए अलग रेजिस्टेंस है, और किसी का स्ट्रॉन्ग है, किसी का वीक है। तो एक ही पर्टिकुलर रॉक हम देखें, हो सकता है एक प्रोसेस के लिए, मतलब सपोज विंड एनर्जी से वो रेजिस्टेंस है, मतलब विंड एनर्जी उसका ज्यादा कुछ इरोड या उसको ब्रेकअप नहीं कर सकती, ना क्रैक्स ना फोल्ड उसमें डेवलप कर सकती है। वेयर हो सकता है कि वाटर जो है, रनिंग वाटर, वो उसमें ऐसे फोल्ड्स या फॉल्स क्रिएट कर दे। टेम्परेचर डिफरेंस भी कोई हो सकता है कि सन की जो पावर है उसको आराम से मतलब टॉलरेट कर पाए, वेरेस कुछ सेक्शन है जो, कुछ ऐसा रॉक हो जो इतने रेजिस्टेंस नहीं है, थोड़े से उनमें क्रैक्स जैसे अपेयर हो जाए। तो अपने को इतना ही समझना है यहाँ पे कि रॉक्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस तरीके से वो, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्वालिटी है, उसके हिसाब से उनके वेदरिंग पे इफेक्ट होता है। नाउ बेसिकली हम ये भी देखेंगे कि ज्यादातर जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं ना, उनके इफेक्ट बहुत स्मॉल और स्लो स्लो होते हैं, मतलब अपने इजीली उसको नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है। चाहे हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बोले, चाहे हम इरोजन बोले, चाहे जो हम ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स और देन फॉर्मिंग इनटू स्मॉल सेडिमेंट्स एंड देन फॉर्मिंग द सॉइल एक्सेट्रा, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है बहुत स्लो होता है और बहुत टाइम लगता है, हम इजीली नोटिस नहीं कर सकते। और हम बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट है और कंटिन्यूअस चलता रहता है, तब जाके फाइनली कुछ बड़ा चेंज आता है। फाइनली हम बोल देते हैं कि जो अर्थ की सरफेस है उस पे जो चेंजेस है, यानी कि जो उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस है, या जो सरफेस है अर्थ का, उसमें जो डिफरेंसेस है, ये क्रस्टल एवोल्यूशन तो है ही, ऑब्वियसली अपने को पता है। जो मूवमेंट होती है इनसाइड ऑफ द अर्थ वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही, बिकॉज उसी के कारण कहीं पे राइज होता है, कहीं पे लो लाइन एरियाज होता है। बट उसके अलावा ये जो हम एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करते हैं, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड ये जो है इन डिफरेंसेस क्रिएट करने में दे ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि जो अर्थ का मटेरियल है उसका टाइप और स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मेजर चेंजेस आते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, though ये changes slow है, but there are changes and they are continuously in operation, and that is why these bring changes on the surface of the earth. And exogenic forces include many forces like weathering, soil erosion, एंड देन वी नो दैट इसके अलावा बहुत सारी और चीजें होती है जो इनका रिजल्ट है बिकॉज ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो, चाहे वो और कोई तरीके का इरोजन डेपोजिशन हो, और समवेयर हम इसको सॉइल फॉर्मेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। सो फाइनली वी कैन जस्ट वाइंड अप एक्सोजेनिक फोर्सेस, the you can say the brief explanation of exogenic forces by saying that these also bring long changes, big changes on the surface of the earth, but they are very slow. There are few rapid, you can say कुछ ऐसे हैं जो थोड़े बहुत रैपिड भी होते हैं पर जनरली स्लो मूवमेंट्स होते हैं। So with this we complete the basic explanation of exogenic processes कि क्या होते हैं, इनके पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस क्या होते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इन एक्सोजेनिक फोर्सेस को स्टार्ट करते हैं एंड इनको इनिशिएट करते हैं। सारी चीजें आ जाती है इसमें, क्लाइमेट, ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट्स, और सबसे मेन जो है वो सन ही है, क्योंकि सन के कारण ही हीटिंग, कूलिंग, प्रेसिपिटेशन और सारी चीजें आती है। तो ऑल ऑफ दीज फाइनली वी कैन से सारे प्रोसेसेस मिलके एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को स्टार्ट करते हैं, इनको हेल्प करते हैं टू कंटिन्यू एंड फॉर्म, लैंड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। And this is we'll study the exogenic forces, each of them in detail in our next class. So this is it for today. If you have any doubt, just come with your problems in our next class and we'll solve the problems. And do give this portion a reading so that if you